Okay, again, good morning, students. We are going to start with our difference between formal and informal organization. So, before we start that, tell me what is formal and informal organization? Formal organization क्या होता है? Tell me, Harshvardhan. Harshvardhan, tell me what is formal organization? Teacher, I don't know. Why you were not present in the last lecture? No, ma'am. Okay, Hinal, you tell me. Formal organization means the direct organization when anyone give direct instruction to one person in written or oral form. Formal organization is something which is made by the group of your board of directors or anyone for so as to fulfill the objectives of the company. Like for example, the Prime Minister of India, the Finance Minister of India, the you can say different ministers of our country. That is example of formal organization, है ना? वो example है of formal organization. Just a second. So I just had some message for the student. तो मैंने भेजा है. I hope he gets the message. Okay. By the time, yes, formal communication वो होता है जो जैसे एग्जांपल स्कूल का दूँ तो प्रिंसिपल है, टीचर्स है, all the people they have a formal communication or formal organization. Okay, they are the part of formal organization. Informal organization क्या होता है कि that is something which we is created in the shadow of formal organization. मतलब स्कूल में 10 टीचर है, they come together and they work together being a teacher. But उसमें से 2 टीचर है, they are best friends. They always share their tiffin, they always sit together. उनकी चेयर हमेशा पास में होगी. कभी उनका फ्री लेक्चर भी होगा तो वो लोग साथ में ही बैठे होंगे, है ना? तो दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. एंड फॉर्मल जो होता है वो जो हमारा क्रिएट होता है जब हम मीटिंग में होते हैं तो हम सब टीचर साथ में बैठे होते हैं, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. बट जब हमारा फ्री टाइम होता है, मतलब रिसेस का टाइम है या फ्री लेक्चर, तो आई विल सिट विद माई फ्रेंड, आई वुड लाइक टू स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड. दैट इज योर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू क्रिएट द रिक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अदर पर्सन. जैसे हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था, आई आस्क्ड अबाउट स्टूडेंट्स हेल्थ. मैंने पूछा था रश्मि हाउ आर यू, एंड आई आस्क्ड प्रियांशु हाउ आर यू. दैट इज अ पार्ट ऑफ माय इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. At that time, I was doing informal communication with the students with whom I am in touch. I had a talk with those students और they told कि we are not feeling well, तो मैंने उनको पूछा. That is informal communication. Formal communication, there is one student who asked me about the timetable and I give information about the timetable. That is formal communication which I am giving to the students. So being with you, I do both. I do formal communication and I also do the informal communication. Fine. Okay. So first of all, let us see what is the meaning of formal communication. First is communication system which depends on rules and regulation, and for the accomplishment of business objectives is known as formal, you can say organization, or the things which are done to run this formal organization, the instructions which are given to run this formal organization is known as formal communication. ठीक है. नेक्स्ट इज योर इनफॉर्मल. एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि दे हैव मेड द मिस्टेक ओवर हियर. इन्होंने मिस्टेक ये की है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन लिखा है लेकिन यहाँ पर इंफॉर्मेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की दी है. ठीक है. यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा. ये जो वर्ड है ना, यहाँ पर चेंज इन योर टेक्स्ट बुक, इट शुड बी फॉर्मल कम्युनिकेशन. ऑल ऑफ यू टेक्स्ट बुक लेके बैठे ना सब लोग, तो टेक्स्ट बुक में ही ये वर्ड चेंज कर लीजिए जो मैंने हाईलाइट किया है. दिख रहा है सबको? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना, दैट वर्ड शुड बी फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड हियर आल्सो इट शुड बी फॉर्मल कम्युनिकेशन. ठीक है, ये गलत है.
नेक्स्ट, इसका मेन एम क्या होता है? टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एक्सेट्रा इन द ऑर्गेनाइजेशन. एंड इनफॉर्मल का मेन एम क्या होता है? टू क्रिएट sympathetic and friendly environment, a place where you would like to come next day. ठीक है, दैट इज योर इनफॉर्मल. घर स्कूल आने का एक रीजन ये भी होता है कि फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारने होते हैं. पढ़ना तो ठीक है, वो तो बात की बात है, पर स्कूल जाए, फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारे, टिफिन खाए, उसकी बॉटल में से पानी पिए, उसकी नोटबुक छुपा दे, उसका पेन ले ले और फिर कभी वापस ना दे. ऐसे सब करने के लिए भी हमको स्कूल की बहुत याद आ रही है ना. एंड आई फील वेरी सिंपैथेटिक विद यू पीपल कि आपकी स्कूल लाइफ का लास्ट ईयर आप लोग ये सब नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, अदरवाइज क्या क्या सपने देखे होंगे कि लास्ट ईयर में क्या ये करेंगे वो करेंगे, बट नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ दिस कोविड कोरोना. ठीक है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये भी होता है टू क्रिएट अ सिंपैथेटिक एनवायरनमेंट व्हिच इंक्रीजेस कोऑर्डिनेशन. सपोज आपके फ्रेंड का होमवर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो एक काम कर, साइड में वो 4 पेज में लिखती हूँ, 4 पेज तू लिखता है. अरे तेरी हैंड राइटिंग है, मैं उल्टे हाथ से लिखूंगी, पता नहीं चलेगा, तू ले देना ऐसे करके आप लोग उसका होमवर्क कंप्लीट करवाओ. ये गलत है, पर ठीक है, मैं बता रही. कोऑर्डिनेशन, क्रेडिटेबिलिटी, और फिर क्या बोलते हैं ना, बीइंग विद योर फ्रेंड. अगर उसका कोई प्रोजेक्ट बाकी है तो आप उसको हेल्प करो, तो कंप्लीट द प्रोजेक्ट. दैट इंक्रीजेस द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द स्कूल. या फिर अपने फ्रेंड को पढ़ाओ, उसको नहीं अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड को बोले, तेरे को इतना नहीं आता, मैं बताता हूँ, इसका आंसर ऐसे आता है, इसको ऐसे कर, कंप्यूटर को ऐसे यूज कर, लैपटॉप को ऐसे यूज कर, तेरे को क्या बोलते हैं ना, ये कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता, मैं देखो सिखाता हूँ. तो उससे क्या हो रहा है? यू आर शेयरिंग योर नॉलेज विद योर फ्रेंड एंड एट द एंड ऑफ द डे इट विल इंक्रीज द यू कैन से बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आवर स्कूल का रिजल्ट अच्छा होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज बेस. इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड दिस इज बेस्ड ऑन द फ्रेंडली रिलेशनशिप. ये अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है उसके बेस पे डिसाइड होता है. नेक्स्ट इज सुपरविजन. इसमें क्या होता है? यू सुपरवाइज एंड यू कंट्रोल द पीपल. There is no supervision and control. Everyone is free to decide what they want to do, what they don't want to do. This is not flexible. This is more flexible. कल मेरी फ्रेंड फर्स्ट बेंच में बैठने वाली नेहा थी, आज मेरी फ्रेंड वो मेरी दुश्मन बन गई है. तो थर्ड बेंच पे बैठने वाली जो दूसरी लड़की है, मे बी शीना, शी इज माई फ्रेंड नाउ. ठीक है, तो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर. बट यहाँ पर आपका बॉस जो है वो 20 साल तक आपका बॉस ही रहेगा. आप अपनी मर्जी से बॉस को चेंज नहीं कर सकते. यू कैन चेंज योर फ्रेंड, यू कैन चेंज योर ग्रुप इफ यू डोंट लाइक योर फ्रेंड और योर ग्रुप, बट यू कांट चेंज योर बॉस. इवन नो वन लाइक्स द बॉस. दुनिया में ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है जिसको अपना बॉस पसंद है. तो अगर आप अपने बॉस को नहीं भी पसंद करते हो, बट आप उसको बदल सकते नहीं हो. ठीक है, वर्किंग आवर्स आर क्वाइट फिक्स्ड इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स्ड इन द, और यू कैन से टाइमिंग्स आर नॉट फिक्स. आप रात को 3 बजे भी अपने फ्रेंड को कॉल कर सकते हो, बट अपने कलीग को नहीं कर सकते. वो कलीग बोलेगा दिमाग खराब है, इज दिस द टाइम टू कॉल मी. लेकिन अगर आप फ्रेंड को 3 बजे फोन करोगे तो वो कुछ नहीं बोलेगा, बिकॉज ही इज योर फ्रेंड. और अगर बोले तो वो आपका फ्रेंड ही नहीं है. चेंज योर फ्रेंड. नेक्स्ट इज योर इन्फॉर्मेशन इन एडवांस. यहाँ पर इन्फॉर्मेशन वेल बिफोर हैंड. जैसे आपने बताया ना, हर्षवर्धन है, उसने बोला कि मैम एक दिन पहले मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो. तो दैट इज व्हाट इज डन इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? बिफोर हैंड ये नहीं होता है. शाम को फ्रेंड धमकता है, चल पिक्चर देखने चलते हैं. अरे मेरे को काम है, काम साइड में रख, पिक्चर देखने जाना है मतलब जाना है. So there is no beforehand determination of communication channel or anything over here. No information needed to be given in advance. Not necessary. You can give, you may not give. So things are quite flexible in informal communication, and things are very rigid in case of formal communication. Now we'll go to the clear with this point. Any student any difficulty in this? हाँ, और कुछ स्टूडेंट्स को ये भी डिफिकल्टी है कि ये चीज़ हमारे उसमें इंक्लूड नहीं है, कोर्स में इंक्लूड नहीं है. वो इंक्लूड है नहीं है, यू हैव टू वर्क ऑन इट. ठीक है, तो डोंट गिव दैट काइंड ऑफ एक्सक्यूजेस. सब कुछ पढ़ना है, ये हमको प्रिंसिपल मैम ने कहा है. ओके, नेक्स्ट इज योर बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इन दैट फर्स्ट इज लैक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. क्या होता है कि जब आप जो कोई कम्युनिकेशन करो उससे सामने वाला उसको रिस्पॉन्ड करे. ठीक है, इफ आई वुड से ब्रिंग मी अ कप ऑफ कॉफी एंड अ पर्सन ब्रिंग्स मी अ कप ऑफ कॉफी, that means there is an effective communication. But if I say bring me a cup of coffee and a person won't bring me a cup of coffee because he had hearing disability, उसको सुनाई नहीं देता था, तो मुझे उसके लिए साइन लैंग्वेज यूज करना पड़ता. बट मैंने उसको साइन लैंग्वेज से नहीं समझाकर
because I was not having that information that the person is you can say having problem with the hearing. तो क्या हो रहा है, there is no effective communication. Just speaking out does not mean communication. कई बार मैं बोल रही हूँ लेकिन आपका नेटवर्क इशू है, मैं क्या बोल रही हूँ सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा ना, मैं बोल रही हूँ बट आपको सुनाई नहीं दे रहा है. There is lack of effective communication. So communication is something where you have to create a required understanding in the mind of other person. But due to certain problems like affection, mistake, estimation, misunderstanding, distrust, fear, etc., many a times we cannot communicate our things which we want to communicate. So this, the affection, mistake, estimation, misunderstanding, they come as if the barrier of effective communication. Okay, so let us see what are the barriers. Barriers का मतलब होता है which barriers को हिंदी में क्या बोलेंगे? Can you give me some word? Barrier को हिंदी में क्या बोलेंगे? मैम अड़चने. अड़चने, अवरोध है ना, अवरोध है, अड़चन है, प्रॉब्लम्स. सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? लैक ऑफ प्लानिंग, पहले तोलो फिर कुछ बोलो. हर्ड दिस, किसी ने ये इडियम सुना है, पहले तोलो फिर कुछ बोलो? उसका मतलब क्या होता है? थिंक बिफोर यू स्पीक. दैट व्हिच आई हैव ना, दैट कभी भी मैं कोई चीज बोल रही हूँ तो बीच में एक लेके आती हूँ ना, दैट पॉज, दैट इज फॉर थिंकिंग बिफोर आई स्पीक. जब मैं कोई शब्द सेंटेंस बोलती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि मैं ये सेंटेंस बोलूँगी, उसका सामने वाले पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको समझ में आएगा. एम आई यूजिंग सम वर्ड विच मे क्रिएट मिस कम्युनिकेशन? एम आई यूजिंग सम वर्ड विच मे बी इंसल्टिंग? आपको पता है मैं बहुत बार, there are certain like I never knew, एक बहुत ही फनी सी चीज है, me and my sisters, we have very special bonding. We are best friends. I have two sisters, और we always call each other बहनजी. ओ बहनजी क्या कर रहे हो, है ना, like जैसे मेरे भाई को 10 साल छोटा है पर मैं उसको भाई साहब बोलती हूँ, ओ भाई साहब काम कर लो ना, being sarcastic. So it is not a bad word. But last, and that comes in, जैसे आप जो अपनी फैमिली लाइफ में जो वर्ड्स यूज करते हो ना, that comes in your first, यहाँ पर स्कूल में भी जब कई बार कुछ होता है तो मैं बोलती हूँ ओ बहन जी साइड में हो जाओ, ओ बहन जी इधर हो जाओ, ओ बहन जी व्हाट इज योर प्रॉब्लम, है ना. आई यूज दैट. एंड वन स्टूडेंट, I know her name or his name, but I won't give the name. But that person came to me कि मैम आप ना सबके सामने हमको भाई साहब, बहन जी, भाई साहब बोलते हो ना, इतना खराब लगता है. अरे मैं गाली थोड़ी ना दी है, भाई बोला ना. क्या बोला फिर आई जस्ट डिस्कस विद माय सिस्टर कि मैंने बोला यार मैं ना मेरी क्लास में कभी कभी बहन जी भाई साहब बोलती हूँ ना तो दे हैव प्रॉब्लम विद दैट. बोले नहीं उनको ऐसा लग रहा होगा कि हम बुड्ढे हो गए. मैंने बोला यार मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था उनको बुड्ढा बोलने की, पर ठीक है अभी वो ऑफेंड हो रहे तो फिर तो पक्का बोलूंगी. चलो आई हैव वन वर्ड टू ऑफेंड देम, तो अभी तो मैं जानबूझ के भाई साहब बहन जी बोलती हूँ. चलो किसी को ऑफेंड करना तो भाई साहब बोलो, बहन जी बोलो. एंड आई स्टिल डोंट गेट इट व्हाट इज offending in that word. So see, this is something which I never knew and I don't accept it as an offending word. Bhai sahab, benji is not an offending word, but there are certain offending words which you may use, and that will create a wrong impression in the mind of other person. आप गलत शब्द, गलत सेंटेंस में अगर आप गलत शब्द यूज करते हो तो it will create a wrong impression in the mind of person, and that will bring a lack of communication. तो जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला ना ओ बहन जी, बस उसका तो दिमाग बंद हो गया, मैडम मुझे कुछ खराबी बोलने वाली है. मैं कुछ अच्छा भी बोलूँ तो भी वो नहीं सुना. ठीक है. सो लैक ऑफ प्लानिंग व्हाइल यू डिसाइड योर सेंटेंस, और लैक ऑफ प्लानिंग और यू कैन से गिविंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. मतलब फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू हैव टेस्ट, कब, आज, कल, परसों, नरसों, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, कुछ नहीं बता रही हूँ. दैट मीन्स there won't be any communication and there would be I won't be able to get what I want from the student. बच्चे को पता नहीं कब लेगी टेस्ट में, उनका तो कुछ पता ही नहीं, चलो नहीं पढ़ना.
ठीक है, तो दैट इज लैक ऑफ प्लानिंग बिफोर स्पीकिंग आउट क्रिएट्स अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इज फॉल्टी ट्रांसलेशन। अभी फिर से वो बहन जी वाला ही लेके आती हूँ। मैंने बहन जी इसलिए बोला कि बिकॉज आई हैव अ हैबिट ऑफ यूजिंग दैट वर्ड, बट दैट चाइल्ड he or she he used it as a faulty translation कि मैडम मुझे ना बहुत बुढ़ा समझती है, ये है ना, और she wants to offend me by using the word बहन जी और भाई साहब, ठीक है। so faulty translation I wanted to use. Other than that, suppose some person is South Indian in our school and he uses some word from his mother tongue, so I won't be able to understand. ठीक है, या फिर some person is from different caste or which is not my mother tongue. I am specifically from Marwar. ठीक है, मैं राजस्थानी हूँ, तो अगर मैं राजस्थानी में अभी बोलूँ तो शायद आधे से ज़्यादा लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट। वो लैंग्वेज की बैरियर्स हो जाता है। अगर सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया साउथ इंडियन पर्सन आया है और जिसको गुजराती नहीं आती, अभी अभी ज्वाइन किया है, तो फर्स्ट फ्यू मंथ्स इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड सर्टन वर्ड्स। गुजराती बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, वो नहीं समझ में आते, तो वर्ड्स नहीं समझ में आते। जैसे क है तो इट इज़ डिफरेंट देन हिंदी का क है ना, ठ है, ड है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो वो गलत ट्रांसलेशन कर लेते हैं, और गलत ट्रांसलेशन करने की वजह से इंफॉर्मेशन कई बार कहाँ चली जाती है, इट गोज इन अ रॉन्ग, यू कैन से center. That again my sister gave me example. There is one word which was related to gas. Adani corporation के checks उनके पास आते हैं, तो they made use of certain gas. उसको लगा ये miscommunication है, तो उसने उसको change किया, तो उनका वहाँ से फोन आया कि मैडम this is the only word, don't change the word, otherwise it will create a big problem for us. तो कहने का मतलब ये, हम सोचते हैं कि it is a spelling mistake, कोई ऐसी स्पेलिंग होती है ना, अलग सी स्पेलिंग होती है, हमको लगता है ये तो स्पेलिंग मिस्टेक है, और हम उसको अलग से ट्रांसलेट कर देते हैं, तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन। अनक्लियर मैसेज, हमारे जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है अगर वो स्टेबल नहीं है तो कई बार मैसेज आधे जाते हैं। कभी सपोज हम कॉल कर रहे हैं तो बीच में आवाज़ कट रही है, तो मुझे सिर्फ आधी चीज़ें सुनाई देती है, तो उसकी वजह से क्लियर मैसेज नहीं पहुंचने की वजह से द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज इट इज़ नॉट फुलफिल्ड, and the person if he is not able to understand what you want him to done, तो जैसे फॉर एग्जांपल मम्मी का फोन आया कि बेटा मैं लेट आऊंगी, तुम है ना, फिर आवाज आई। अब ये पता है मम्मी लेट आएगी, पर आगे क्या बोला, क्या करना है वो पता नहीं। मम्मी को लगा मैंने मैसेज दे दिया, लेकिन आपको कोई मैसेज मिला नहीं, और फिर आप मम्मी को कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, मम्मी का फोन नहीं लग रहा, फिर मम्मी 2 घंटे बाद आके बोलती मैंने तेरे को फोन करके बोला था, आप बोलोगे मेरे को सुना ही नहीं दिया। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ अनक्लियर मैसेज। ड्यू टू सम रीजन आपको सामने वाले का मैसेज साफ सुनाई नहीं देता, तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अनक्लियर एजम्पशन, मैसेज समझ में भेजा है, वो सुना, लेकिन मैंने अज्यूम कुछ और कर दिया, आई मेड अ रॉन्ग एजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड से कि भाई जैसे सपोज दिस टॉपिक इफ इट इज नॉट देयर इन योर कोर्स एंड आई टोल्ड यू कि दो इट इज नॉट देयर इन द कोर्स वी आर गोइंग टू स्टडी, तो आपने एक अजम्पशन बना लिया कि नहीं ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, जबकि मैंने सिर्फ ये कहा हम पढ़ेंगे बट इट मे नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो यू मेड अ कि मैम पढ़ा रही है तो शायद ये सीक्रेटली आने वाला है, ये सीक्रेट क्वेश्चन होगा, तो यू मेड अ रॉन्ग assumption in your mind, so that is why you will work on this question and you will not work on some other question। या फिर एग्जाम से पहले जैसे हम रिवीजन करवाते हैं, तो रिवीजन में मैंने रैंडम 4 क्वेश्चन का टेस्ट लिया, ठीक है, या फिर 4 क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व करवाए, तो आपने एज्यूम कर लिया कि मैडम ने ये 4 क्वेश्चन करवाए ना, तो ये 4 क्वेश्चन तो एग्जाम में आने नहीं वाले हैं, बट आई जस्ट रैंडमली टुक 4 क्वेश्चन कि भाई ये देखने के लिए कि बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आई वाज नॉट हैविंग एनी इंटेंशन टू पुट दोस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, बट आपने एज्यूम कर लिया, अपने दिमाग में सोच लिया कि मैडम ने रिवीजन में दिया है, मतलब मैडम यही क्वेश्चन को एग्जाम में पूछेगी, फिर एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप बोलोगे मैडम आपने तो रिवीजन करवाया था, तो पर आपने वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं, तो मैं बोलूंगी कि मैंने कब बोला था ऐसा, पर मैम आपने रिवीजन में तो करवाया था, पर मैंने बोला था, मैं बोलूंगी नहीं, तो फिर मैंने बोला आपने एज्यूम किया ना, मैंने बोला नहीं, फिर भी आप एज्यूम करो, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इट वॉज योर थॉट, इट वॉजंट माई थॉट, ठीक है। तो कई बार हम लोग सामने वाले को कि बॉडी लैंग्वेज से या कुछ भी चीज से वी मेक सर्टन assumptions which may not be wrong,
and which may not be right, and that is why we may do the things which were not intended to be done. Okay, टाइम अप होने वाला है. कितने पॉइंट्स हैं? चलो फटाफट करते हैं. Shortage of time. There is always shortage of time as the अभी देखो, there is shortage of time. मेरे पास रिंग बज गई कि you have only 10 minutes to go. तो शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तो मैं क्या करूँगी, फटाफट कर दूंगी, तो सब क्या होगा कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिस आउट हो जाएगा. To complete, I may be in hurry due to my hurry to complete the maximum topic in one lecture. I may be in hurry, leave some important points or some important information. Next is overburden of communication. This is इसके लिए best example है receptionist. The person who is a receptionist on a होटल के जो मेन लॉबी होता है ना, वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट होता है. उसको काम क्या होता है, उसके पास हर जगह से कॉल आता है. रूम नंबर 7 में क्लीनिंग करवाओ, रूम नंबर 8 में नाश्ता भिजवाओ, रूम नंबर 6 में ये करवाओ, रूम नंबर 8 में वो करवाओ. तो रिसेप्शनिस्ट के पास में हजारों इन्फॉर्मेशन है. एवरी डे ही शी इज गेटिंग, हर घंटे में उसको 50 इन्फॉर्मेशन आई है और उसको ट्रांसमिट करनी है. तो कई बार ऐसा होता है, शी में सेंड अ रॉन्ग पर्सन इन अ रॉन्ग रूम. हर्षवर्धन, योर ब्रदर देयर, एनी प्रॉब्लम ही इज हैविंग? ओके. तो ओवरबर्डन ऑफ कम्युनिकेशन मतलब उसको ऐसा बोला है कि रूम नंबर 10 में सफाई करवाओ, तो वो उसकी जगह 10 की जगह पे 20 में पहुंचा दे उसको बाय मिस्टेक. सो ड्यू टू नंबर ऑफ कम्युनिकेशन, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी चैनलाइज्ड, अ पर्सन मे गिव अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन एंड दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. नेक्स्ट इज, या फिर वो इंफॉर्मेशन दे ही नहीं, भूल जाए. देन यानी रूम नंबर 10 में सफाई नहीं हो रही, वहाँ पे वो चिल्ला रहा है, और रूम नंबर 20 वाले बोल रहे हैं कि भाई हमको सफाई नहीं करवा रही, व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग अस. तो दोनों जगह पे इट इज अ कियोस. नेक्स्ट इज इग्नोरेंस टुवर्ड्स द मैसेज. कई बार पर्सन दे डोंट टेक द मैसेज बाय कंसिडर द मैसेज. मैं बहुत बार बच्चों को बोलती हूँ कि डोंट सेंड मी पर्सनल मैसेजेस और डोंट सेंड मी मैसेज दिस वे, अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज वी समटाइम्स रिमेन अनअटेंटिव टुवर्ड्स द मैसेज, एंड ड्यू टू दैट I may leave out certain points. बहुत सारे एडवर्टीजमेंट मैसेजेस आते हैं. जैसे अगर आप मुझे SMS भेजो, आप लोग कभी व्हाट्सएप भेजते हो तो मैं देख लेती हूँ. कोई बच्चा मुझे अगर SMS भेजेगा तो मैं नॉर्मली यही देखते कि भाई एक्सिस बैंक का ही मैसेज होगा जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर किसी लोन वाले का इंटरेस्ट है. तो आपका SMS शायद इग्नोर हो जाए बिकॉज यू आर सेंडिंग थ्रू द राइट चैनल. एंड आई वॉज इनअटेंटिव टूवर्ड्स SMS. मैं व्हाट्सएप को देखती हूँ, मैं अच्छा आप मुझे मेल भी करोगे तो शायद मैं ध्यान ना दूँ. So there are certain problems which create ignorance towards the messages, and if we don't see the message then we will not respond, and if we will not respond there would be no communication. This is a ये basic. इसमें एक्चुअली मुझे बताना चाहिए कि भाई मैं व्हाट्सएप की जगह SMS करूँ, है ना. तो दैट विल क्रिएट. अच्छा आपको ये बता दी, एक हमारे भैया है वो व्हाट्सएप नहीं देखते, उनको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो तो उनको व्हाट्सएप ही करना पड़ता है, सॉरी SMS करो. संतोष भैया, वो संतोष भैया को बोले ना कि भैया आपने को मैंने व्हाट्सएप किया. आपने व्हाट्सएप क्यों किया? मैं व्हाट्सएप पे हुई नहीं. आप मुझे SMS करते, अब मेरे को याद करके उनको SMS करना पड़ता है और सबको व्हाट्सएप करना पड़ता है. तो ये ऐसे भी प्रॉब्लम्स होती है. इम्प्रॉपर, कई बार हम लोग ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं. जैसे हमारा स्कूल का ग्रुप है RHHS ऑफिशियल, RHHS न्यूज एंड इवेंट. RHHS न्यूज एंड इवेंट इज फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, RHHS ऑफिशियल इज फॉर फॉर्मल कम्युनिकेशन. दो ग्रुप है स्कूल के. तो कई बार सपोज कोई फॉर्मल इन्फॉर्मेशन अगर मैं न्यूज एंड इवेंट में डाल दूंगी ना, तो वो शायद कोई देखेगा ही नहीं. दूसरे दिन पता चलेगा कि वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रिसीव हुई ही नहीं. नेक्स्ट इज डिस्ट्रस्ट एंड फियर. दिस इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम. People don't trust a person, and due to that whatever he says they will always think that ये मुझे कुछ फंसाने की कोशिश कर रहा है. सपोज आपका फ्रेंड बोले कि कल तो टाइम चेंज हो गया है स्कूल का, 8 बजे आना है. ये मेरे को उल्लू बना रहा है, ये मुझे लेट आने के लिए बोल रहा है जिससे मेरे को डांट पड़े, और आज सुबह 7:30 बजे या फिर 7:10 को स्कूल पहुंच गए और सब लोग 8 बजे आए. आपको बोलेंगे कि आप क्यों भाई आज जल्दी आ गए, तेरे को मैसेज नहीं मिला? पर बोला मैम पता नहीं, मुझे लगा मेरा फ्रेंड मेरे को उल्लू बना रहा है. तो यू डोंट ट्रस्ट योर फ्रेंड, तो यू डोंट एक्सेप्ट हिज मैसेज, और you fear that the person is giving you wrong information. Due to that distrust and fear, many a times we don't take the information even if it is given properly, and we do something which is opposite to what is told to us. अगर मुझे बोले लेट आओ तो मैं जल्दी आऊँ, ठीक है, फिर बोलेंगे कि आप लेट जाने का, तो फिर बोलेंगे ना वो जल्दी भी आएगा लेकिन कोई काम नहीं होगा और उसको लेट भी जाना पड़ेगा. ओके, so these are all your what we say
बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ टू ओवरकम दोज बैरियर्स, जो इसकी बैरियर्स है उसको ओवरकम करने के लिए ये है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन है it should be organized as per the organizational structure. मतलब top level will give information to middle level will give information to bottom level, कोई छूटना नहीं चाहिए, ठीक है. तो चैनल को प्रॉपर करो, प्रिसाइज रखो, लंबा 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 मत बोलो. अगर आप लंबा लंबा बोलोगे तो वो पर्सन पढ़ेगा नहीं. आप उसको एक लाइन में शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज भेजो, तो दैट विल बी अंडरस्टूड प्रॉपर्ली. इट शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट. ठीक है, आप लोग लेटर लिखते हो ना, दैट इज प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट. सब्जेक्ट सबसे हेडिंग में लिखते हैं जैसे, ठीक है. अप्रोप्रिएट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी सिलेक्टेड. मैंने जैसे बताया दैट सर्टन पीपल लाइक टू गेट मैसेज बाय व्हाट्सएप, सर्टन पीपल लाइक टू गेट इट बाय email, certain gets it by SMS, certain people like a call from you. So you need to choose a proper medium, and that will help you to make a proper decision, proper communication. Two-way process होना चाहिए. तो informal, sender as well as receiver both should be active, and both should have cooperation and coordination with each other. मतलब उनके बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है. इट शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट, ऐसे जो मैंने आपका कहा था. इट शुड बी फास्ट, मतलब आज की इंफॉर्मेशन मैं आपको भेजूँ और कल मिले. You know that Telegram and this are dying. Why they are dying? Because they are not fast. The things which I can send by in a minute by email, it will take like days by, you can say, Telegram. ठीक है, वो कुछ दिनों तक भी नहीं पहुंचेगा. And communication should be goal oriented. पहले आपको decide करना है what you want to achieve. Then as per your goal, you have to give the make the communication. Time to time evaluation करना चाहिए. और there should you can say नहीं टाइम है, 1 मिनट बाकी है. So during the entire process, you should not have any person who is having personal interest. For example, कुछ person होते हैं जो purposefully information को hide कर लेते हैं and present it eccentrically. Eccentrically मतलब अपने फायदे के हिसाब से. They will try to mold it for as per his own benefits. Like for example, tomorrow we have to come early and we will have potluck. Potluck का मतलब क्या होता है कि we are supposed to bring some food. तो मैं सिर्फ potluck वाली information ऐड कर दूँ जिससे कल मुझे टिफिन नहीं लाना पड़े और मैं दूसरे का टिफिन खा लूँ, ठीक है. ऐसे मैं अपने इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट, potluck यानी potluck पार्टी का कोई रूल नहीं था, मुझे ऊपर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, पर जस्ट टू गेट ईट फूड मैंने ये पर्सनल इंटरेस्ट को अपना फुलफिल करने के लिए. तो ऐसा पर्सन जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने की कोशिश करे, ऐसे पर्सन को किसी भी एक्टिविटी में, कम्युनिकेशन एक्टिविटी में इंक्लूड करना चाहिए नहीं, ठीक है. So this is all about your measure to overcome communication. Any difficulty in this? Any difficulty in your topic? Dhruvi, Purvi, Uma, Rashmi, Priya, Tushar, Tarun, किसी को कोई difficulty है? Okay. So with this we are completing our chapter, and जितने भी हमने points मैंने homework में दिए थे, excluding that, you have to complete your exercise and send it in the homework room. So for today your homework will be complete your exercise. जो question already हो चुके हैं वो लिखने की वापस से जरूरत नहीं, ठीक है. Only the question which are left you have to complete that. Okay. So complete your exercise. कोई question नहीं समझ में आए, किसी question में difficulty हो, you can message me, you can call me and ask for the difficulty. Okay. So with this we complete our lecture. अभी less than 1 minute बचे हैं, तो कभी भी बंद हो जाए ऐसे सब मैं ही बंद कर दूँ. So goodbye students. Stay home, stay safe and prepare for your test. Purvi, again thank you very much for coming in uniform. Good to see you. Thank you, beta. Okay. Goodbye students. Stay home, stay safe and prepare for your test. Bye beta. Friend, Hinal, end कर दे? Yes, ma'am. Okay. Bye beta. Yes, ma'am. Okay. Bye bye.